Hello guys, welcome to my channel Planet Bio, and today I am going to discuss features and classification of phylum Chordata. Phylum Chordata, first we can introduce it as phylum Chordata. Chordata means this term or this word has been derived from chord, Latin word chord, that means notochord. And a notochord is a rod-like elastic structure present on the dorsal side of the body, and it is present in chordata. It is absent in non-chordata. Non-chordata means from phylum Porifera to phylum Echinodermata. Now, chordata introduction. Derived from Latin word chord. Chord meaning notochordata. Notochord. That is a rod-like elastic structure. Mesodermal in origin, and it is related to skeleton. Initially it is present in our body and later replaced by vertebral column. In some members or in early members, you can say, so far as evolution is concerned, it may be present as notochord throughout the life. It may be cartilaginous, it may be bony, but it makes the framework of the body, the posture of the body. So it is related to skeleton. Another term is nerve cord, that is related to neural system, ectodermal in origin, and related to neural system. One more term is associated with this, stomochord, that is found in hemichordata. Example, balanoglossus, that is connecting link between non-chordata and chordata, right? So phylum Chordata is introduced as, first point, it is derived from Latin word chord meaning notochord, and this is the skeletal structure. It was well established by a scientist named Baffer. According to him, about 48,000 species included here. So phylum Chordata is introduced as, first point, the term derived from Latin word chord meaning notochord, a skeletal structure, you can say a skeletal structure, and it was established by Baffer, and it includes about 48,000 species, and this is the largest phylum in organization. Largest phylum in organization, not in number. In number, phylum Arthropoda is there. So this phylum was established by Baffer, and this includes 48,000 species, and this is the largest phylum in organization, not in number. Now what about the features? What about the features we can say? Characteristic features, salient features, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, खास गुण हैं, उनके बारे में जानने की जरूरत है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी. हमने कहा नॉन कॉर्डेटा में फाइलम पोरिफेरा से फाइलम इकाइनोडर्मिटा के एनिमल्स आते हैं, उसमें ये नोटोकॉर्ड नहीं आता है और वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं. हमने पिछले वीडियोस में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन बतलाए हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. और आपको समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. लेकिन यदि ना समझ में आए तो क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, और प्रत्येक क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा. बहरहाल हम बात कर रहे हैं फाइलम Chordata के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो ये सबसे ज़रूरी बात है
कि वन बाय वन हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर, खास गुण के तौर पर, प्रमुख विशेषताओं के रूप में, साइलेंट फीचर्स के रूप में, और वो ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। अब ये बताने की बात आ गई फिर से कि नोटोकॉर्ड है क्या। तो नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और साथ में आप कह सकते हैं कि यह स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और यह भी कह सकते हैं कि किसी किसी में ये इसी रूप में जीवन भर रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, या किसी किसी में आप कह सकते हैं कि रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे हम लोग ह्यूमन एडल्ट हैं तो हमारे में मैमल्स हैं तो हमारे में ये रिप्लेस हो चुके हैं। अर्ली फेज ऑफ लाइफ में थे नोटोकॉर्ड, अब वो रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम हो गए। और वर्टिब्रल कॉलम एक पोस्चर देता है, एक आपको सपोर्ट देता है, वो कह सकते हैं कि मूवमेंट में मदद करता है, और कह सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस को जमा भी करता है, स्टोरेज हाउस भी है। तो बहुत सारे काम है, पर ये प्रमुख काम है। तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इस पर और हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इसको रोकना पड़ेगा। डीटीएन कॉर्ड प्रेजेंट, डीटीएन कॉर्ड प्रेजेंट, डी डॉर्सो, टी ट्यूबुलर, और एन नर्व कॉर्ड। अब देखिए, नोटोकॉर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नर्व कॉर्ड, ये न्यूरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नर्व कॉर्ड का दो हिस्सा हो जाएगा। अब ये नर्व कॉर्ड पहले ही बताइए कि कहाँ पर होंगे। डॉर्सल साइड पे होंगे, ट्यूब जैसी रचना होगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये डॉर्सल होते हैं पोजीशन में, साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि ये हॉलो होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं और नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। ये शुरुआती दौर में बनते हैं। ये जितने भी फीचर्स मैं लिख रहा हूँ या जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख रहा हूँ, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप करते हैं। नोटोकॉर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है और नर्व कॉर्ड नर्वस स्ट्रक्चर है या न्यूरल स्ट्रक्चर है। डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है, हॉलो है और ट्यूबुलर है। तो आपको क्या लगता है कि यदि कोई पूछे कि नॉन कॉर्डेटा में क्या होगा? नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन नर्व कॉर्ड तो होंगे। तो वो कहाँ पर होंगे? उल्टा कर दीजिए, वो वेंट्रल साइड पे होंगे। नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल साइड पे होंगे, और हॉलो नहीं होंगे, सॉलिड होंगे। ये ध्यान में रखना है, वेंट्रल एंड सॉलिड होगा नॉन कॉर्डेटा में, यानी पॉरीफस से लेकर इकानोडर्म्स। यहाँ पर होगा डॉर्सल एंड हॉलो होगा, ठीक है। और यही नर्व कॉर्ड का अगला हिस्सा आगे चल के ब्रेन बनाएगा और पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एम्ब्रियोनिक स्टेज वाले हैं। आगे चल के क्या बनाएंगे वो भी हमें समझना है। तो नोटोकॉर्ड आगे चल के बना सकता है वर्टिब्रल कॉलम, और डीटीएन कॉर्ड यानी ये डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है ये आगे चल करके माने लेटर फेज ऑफ लाइफ में क्या बनाएगा? पूरा का पूरा एक हिस्सा ऊपर का ब्रेन, एंटीरियर पार्ट ब्रेन, और लोअर पार्ट जो रहेगा पोस्टीरियर पार्ट वो जाके बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा नंबर ये है कि पेयर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास। पेयर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अब देखिए, ये पेयर्ड होते हैं, ये तो बात सही है। फेरिंग्स के पास होते हैं एबीसी गिल स्लिट्स हैं। कुछ में ये गिल स्लिट्स के तौर पर रह जाते हैं, जैसे अब देखिए साइक्लोस्टोम्स में रह जाते हैं, फिशेज में रह जाते हैं, एम्फीबियंस में भी उसके लार्वल स्टेज में गिल्स हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे जब आप बढ़ेंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आगे के दौर में बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, पर अर्ली स्टेज में रहेंगे। तो ये तीनों एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं। और एक चीज और भी जान लीजिए कि इनमें पीछे की तरफ टेल होंगे, पोस्टेरियर साइड पे, एंटीरियर पर नहीं, पोस्टेरियर साइड पे पीछे की तरफ टेल होंगे। तो पोस्ट एनाल टेल भी मौजूद होते हैं। अब किसी किसी में टेल जीवन भर रहते हैं, किसी किसी में शुरुआत में रहते हैं और बाद में नहीं रहते हैं, तो ये भी लिखना है। तो पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट, यहां भी लिख लीजिए प्रेजेंट, पीटी। अब ये भी देख लीजिए इनके खास
हार्ट जो होंगे, जो कि आपको मालूम है कि ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, यह लोकेशन में डोर्सल होगा कि वेंट्रल होगा? वेंट्रल होगा, क्योंकि डोर्सल नॉन कोर्डेटा में होगा। कोई भी पॉइंट लिखने से पहले आपको सोचना है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। साइंस की विशेषता है, सीधे हम किसी चीज़ को सीधे हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पूछना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से फाइलम कोर्डेटा का पहले नोटोकॉर्ड बना। यह स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो आगे चल के बना सकता है, रिप्लेस कर सकता है वर्टेब्रल कॉलम में। डिटेन कॉर्ड न्यूरल स्ट्रक्चर है, नर्वस स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम से ताल्लुक है इसका। और पेयर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको मालूम है ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। आगे चल के उसके हैबिटेट, एनिमल के हैबिटेट और एडेप्टेशन के अनुसार ये बदल सकता है लंग्स में या अन्य स्ट्रक्चर्स में। पोस्ट एनाल टेल होंगे पोस्टीरियर साइड में, एनस के आगे, तो ये बात सही है। और हार्ट का पोजीशन होगा वेंट्रल। इसका मतलब ये कोर्डेटा का जब फीचर्स है तो इसका उल्टा कीजिए। और ख़ासतौर से हमारे 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पर उनको आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइलम कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, ऐसे आता है। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में डिफरेंसेस लिखें। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने 11th-12th के सिलेबस को ध्यान में रखिए और उसके क्वेश्चन बैंक में जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ना हो कि नीट की तैयारी करते करते हम हाईली ऑब्जेक्टिव हो जाएं और सब्जेक्टिव लिखने की कैपेबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाए। राइटिंग कैपेसिटी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। रीडिंग कैपेबिलिटी भी जरूरी है और राइटिंग कैपेबिलिटी भी जरूरी है। टिक मार्किंग और ऑप्शन वो सही है अपनी जगह, वो फाइनल बात है। पहले कॉन्सेप्ट तब प्रॉब्लम्स, पहले 11th-12th तब नीट, स्टेप वाइज मैनर में प्लानिंग के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ पढ़ना है। मैं बीच बीच में इसलिए मोटिवेशनल हो जाता हूँ क्योंकि आपको इस मोटिवेशन के बिना कभी कभी बहुत तकलीफ महसूस होगी और आप इधर उधर भटक सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, यदि आए आपको 11th वाले बच्चे कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में डिफरेंसेस लिखिए, तो आप इसको याद रखिए, इसमें नोटोकॉर्ड है, नॉन कोर्डेटा में नहीं है। यहाँ लिखिए डिटियन कॉर्ड, इसमें डोर्सल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड है, नॉन कोर्डेटा में, या उल्टा कर दीजिए वेंट्रल एंड सॉलिड है। यहाँ पेयर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे नहीं होते। पोस्ट एनाल टेल यहाँ मौजूद रहते हैं, ये भी देखना आपको उसमें। अच्छा, यहाँ पर हार्ट वेंट्रल एंड पोजीशन, यहाँ पर हार्ट वेंट्रल होते हैं और डोर्सल होते हैं। तो इसको आप आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि कैसे आप दो भाग में करके लिख लेंगे कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा को। अब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो आपको मालूम है कि फाइलम को हम सबसे पहले सब फाइलम में बांटते हैं, ये पक्का रखना है ध्यान में। फाइलम को हम सबसे पहले सब फाइलम में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं भाई, कैसे बांटते हैं देख लीजिए। ये फाइलम कोर्डेटा है तो इसको एनसीईआरटी के हिसाब से 3 सब फाइलम में बांटा जाता है, डिविजिबल इनटू 3 सब फाइलम। आप खाली जरूरी बात लिखेंगे, 3 सब फाइलम में बांटा गया। सबसे पहला नंबर किसका होगा, नाम लिख लीजिए, ब्रेक करके इस तरह से लिखेंगे, याद रहेगा, यूरोकोर्डेटा। दूसरा लिख लीजिए सिफेलोकोर्डेटा, और बाद में लिख लीजिए वर्टिब्रेटा। ऐसे लिख के आप याद कीजिए। तो फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, एक यूरोकोर्डेटा, दूसरा सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के साथ कैसे आगे बढ़े देख लीजिए। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। प्रोटोकोर्डेटा का मतलब होता है प्रिमिटिव और लोअर कोर्डेटा। ये इवोल्यूशन में छोटे हैं, प्रिमिटिव और लोअर कोर्डेटा, ये मतलब है।
और यहाँ वर्टिब्रेटा जो है ये हायर होते हैं, हायर कॉर्डेटा है, हायर कॉर्डेटा इस तरह से चलेगा। अब एक एक करके इन तीनों सब फाइला के बारे में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, इन तीनों के फीचर्स और क्लासिफिकेशन हम आगे भी पढ़ेंगे, उनसे भी प्रश्न आते हैं। क्योंकि ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, थोड़ा सा ड्राई जरूर लगता है आपको, लेकिन ये बेस का काम करता है। इसके बगैर आगे आप जब तक एनिमल की ग्रुपिंग को आप नहीं समझेंगे तो आप आगे बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इनमें हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ कैसे होता है, मॉर्फोलॉजी में इनका फीचर्स कैसे होता है, एनाटॉमी में इंटरनल फीचर्स कैसे होते हैं, फिजियोलॉजी में इनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, जेनेटिक्स में कैसे वहाँ पर हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी में किस एनिमल ग्रुप का रिलेशनशिप किस एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर के साथ कैसा होता है, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेस का काम करता है, इसलिए इसमें समय लगे, मेहनत लगे, तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे लाभ करेगा, हानि नहीं, ये पक्की बात है। अब एक एक करके यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, हमने कहा ये दोनों को मिला दीजिए, दो सब फाइला मिलकर प्रोटोकॉर्डेटा हो गए, प्रिमिटिव और लोअर हो गए, वर्टिब्रेटा हायर हो गए। इसमें नोटोकॉर्ड रहेंगे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में, और यहाँ पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के रूप में वर्टिब्रेटा में, ये हायर कॉर्डेटा हो गए। तो ये अच्छी बात है। अब एक एक करके यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा को आगे बढ़ाएंगे और उसके फीचर्स और क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना है। यूरोकॉर्डेटा यहीं पर लिख देते हैं, स्पेस और टाइम दोनों हमें रखना पड़ता है। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में होता क्या है, इसको फिगर के जरिए समझते हैं। एक रफ डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे बना लेते हैं। यूँ आप एक डायग्राम बना लीजिए, चूँकि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। आगे इधर इंटीरियर पार्ट होता है, इधर माउथ होता है और रिसेप्टर्स, और इधर ये पोस्टीरियर साइड की तरफ एनस होगा, टेल होगा। अब ये यूरोकॉर्डेटा में हम इस तरह से समझेंगे कि फिर नोटोकॉर्ड कैसा है, नर्व कॉर्ड कैसा है, फिर इसके बाकी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। हम एक काम करते हैं कि टिपिकल बॉडी प्लान क्या है एक कॉर्डेटा का, वही समझ लेते हैं। टिपिकल बॉडी प्लान, तो कॉर्डेटा का ही, इसको समझने से पहले चूंकि आपको दिक्कत ना हो आगे, कॉर्डेटा का ही हम एक बॉडी प्लान ऐसे बना देते हैं। ये देखिए, ऐसे बना देते हैं। अब ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और बड़ा कर दिया डायग्राम को। इधर इंटीरियर पार्ट है और इधर पोस्टीरियर पार्ट है। जो लर्नर्स हैं 11th के, वो जान लीजिए, इंटीरियर पार्ट ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर नीचे की तरफ। ये आगे वेंट्रल हो गया और पीछे डोर्सल हो गया। ये वेंट्रल है पेट की तरफ, और डोर्सल पीठ की तरफ, और साइड में जो है ये लैटरल पोजीशन है। इसको आप समझ लीजिए। क्या कहा हमने, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, और साइड वाला कौन सा हो जाएगा, ये साइड वाला, ये हो जाएगा लैटरल। तो यहाँ पर आगे एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। इस तरफ माउथ और रिसेप्टर्स मान लीजिए, इस तरफ एनस मान लीजिए, टेल भी इधर हो जाएगा। चलिए, अब आपको सबसे पहले यहाँ समझना चाहिए कि ये पार्ट डोर्सल है, डोर्सल सरफेस इधर है, इधर वेंट्रल सरफेस है। तो इस तरफ आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी रचना होगी, नोटोकॉर्ड की नर्व कॉर्ड। यहाँ पर ये इस तरह से हॉलो एक रचना होगी, और इस हॉलो रचना को हम लोग बोलते हैं डीटीएन कॉर्ड, डॉर्सो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल साइड पे है, और ये नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के लिए जाने जाएंगे। ये आगे चल करके अगला हिस्सा ब्रेन बनाएंगे, पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे। लेकिन
अब इसके नीचे एक और रचना है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और यह हमारे बॉडी फ्रेमवर्क को बनाता है। ये हमारे पोस्चर और मूवमेंट मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके नीचे बना दीजिए। यहाँ पर एक और रचना समझने के लिए, अब ये देख लीजिए, ये नोटोकॉर्ड है, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए नोटोकॉर्ड। किसी किसी में यह नहीं रहता है, तो जिसमें नहीं रहता उसको नॉन कोडेटा, ठीक बोला, और जिसमें शुरुआती दौर में रहता है प्रोटोकॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एज इट इज जीवन भर। किसी किसी में नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, वर्टिब्रेटा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सा। ये देखिए वेंट्रल माउथ है, यहाँ से एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से चले हैं, ये देख लीजिए। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली, भोजन नली। अब इसका इंटीरियर पार्ट जो होगा, जो आगे का हिस्सा होगा ये माउथ होगा, और ये पीछे का हिस्सा जो होगा एनस होगा। इंटीरियर पार्ट माउथ होगा, इधर एनस होगा। इसी के तहत यहाँ पर दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, दूसरे कलर से यहाँ पर फेरेंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे, ये देख लीजिए, पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे, ये गिल स्लिट्स होते हैं, यही आगे चल करके रेस्पिरेटरी गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स बनाते हैं। इसके बारे में आप लिखिए यहाँ पर, इसके नीचे लिख दीजिए। जब भी बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी डायग्राम्स प्ले अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, इसलिए सब्जेक्ट मैटर में ये डायग्राम बनाइए, उसके नीचे ही जरूर लिखिए फिगर। किसका फिगर है? टिपिकल बॉडी प्लान ऑफ कॉर्डेटा, ये बॉडी प्लान है इसका, टिपिकल बॉडी प्लान। टिपिकल मतलब जनरल, नमूना एक तरह से। बॉडी प्लान, किस तरह से इनका बॉडी का डेवलपमेंट हुआ ऑफ कॉर्डेटा, यह बहुत जरूरी बात है, इसको आपको बना के समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटियन कॉर्ड है जो डॉर्सल एंड हॉलो है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। फिर नोटोकॉर्ड है जो ये भी डॉर्सल साइड पे रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ। और उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल जो पूरे बॉडी में आगे से लेकर पीछे तक है, और इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और यहाँ पर ये टेल है, ये टेल है, पोस्ट एनाल टेल। अब इसका हार्ट जो होगा, हार्ट का पोजीशन कहाँ होगा? हार्ट का पोजीशन यहाँ पे, ये देखिए, ये वेंट्रल हार्ट है। यहाँ से एक ब्लड वेसल जाएगी और यहाँ से एक ब्लड वेसल जाएगी, इसको कहेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल, इसको कहेंगे डोर्सल ब्लड वेसल, और ये जो जुड़े यही हार्ट है, ये ब्लड पंपिंग स्टेशन है। ये ब्लड पंपिंग स्टेशन का काम करेंगे, ब्लड पंपिंग ऑर्गन का काम करेंगे, इसको आप समझिए। अब इसके बाद अब इस डायग्राम के बाद हम इसका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, और इसमें यह है कि हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है और उसके बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं समय देता हूँ लोगों को समझने के लिए। कोई भी सवाल आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, इसको देखने के बाद, समझने के बाद। अब वही बात जो हमने कहा था क्लासिफिकेशन, कि यूरोकॉर्डेटा पहला सब फाइलम, दूसरा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। तो 3 सब फाइलम बांटा गया था। तो यूरोकॉर्डेटा जो है सब फाइला, उसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसके लिए वैसे ही एक डायग्राम बनाएंगे।
इस डायग्राम से समझने में आसानी होगी। कहते हैं 1 डायग्राम इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो ये यहाँ पर यूरोकोडेटा के लिए एक टिपिकल बॉडी प्लान हमने बनाया है और इस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, बॉडी कवरिंग। ये बॉडी कवरिंग जो होती है वो सेलुलोज लाइक सब्सटेंस के बनी होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन कहते हैं। बॉडी कवरिंग ट्यूनिसिन नामक एक कवर से बनी होती है और इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा। अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, एक बात तो आपने कह दिया कि बॉडी कवर ट्यूनिसिन नामक केमिकल से बनी है, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस है, वो हार्ड पॉलीसेकेराइड लाइक सब्सटेंस है, कह दिया ट्यूनिकेटा। लेकिन यूरोकोडेटा क्यों कहा? यूरोकोडेटा इसलिए कहा गया कि इसके पास भी डोर्सल साइड पे इस तरह से नोटोकॉड है, ये नोटोकॉड है। लेकिन ये नोटोकॉड सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, ये प्रेजेंट है इन लार्वल स्टेज, इसके लार्वा में, एग से लार्वा तब एडल्ट, ये है डेवलपमेंट का तरीका, ये लार्वल स्टेज में है। तो आप पूछेंगे आगे क्या हुआ? लेटर इट गेट्स डिसअपियर्ड, बाद में ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और इस वजह से देखा गया है इसमें कि बहुत सारे ऑर्गन शुरुआत में थे, बाद में गायब हो गए। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये प्रोग्रेसिव का उल्टा हो गया, मतलब पहले कभी बहुत ज़्यादा कुछ था, अब वो कमी आ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कमी आ रही है। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। चूंकि नोटोकॉड, फिर से बता दें आपको, चूंकि नोटोकॉड लार्वल स्टेज में ही मौजूद है, आगे ये गायब हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स इनके अंतर्गत होते हैं जो शुरुआत में रहते हैं, बाद में चले जाते हैं, इसलिए रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस प्रकार के परिवर्तन को। और बॉडी के ऊपर ट्यूनिसिन नामक कवरिंग होती है जो सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसी होती है, तो इस बॉडी कवर के कारण इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि यूरो क्यों? इसलिए यूरो कि ये टेल में खाली मौजूद रहते हैं, टेल रीजन में, यहाँ पर ये टेल रीजन मौजूद रहते हैं, यहाँ नहीं ऐसे बनेगा, ये टेल रीजन में खाली मौजूद रहते हैं। तो यूरो मतलब टेल, चूंकि ये टेल है, इस तरफ टेल है, इस तरफ हेड है, तो टेल रीजन में रहते हैं, इसलिए यूरोकोडेटा हम कहेंगे। ये बात चलेगी, ऐसा नहीं कि नोटोकॉड लिया और पूरा बना दिया, ये गलत हो गया। ये किनारे में रखेंगे टेल के तरफ यूरोकोडेटा, इसलिए क्योंकि ये टेल रीजन में है, लार्वा में है किंतु टेल रीजन में है और कहीं नहीं है, और आगे चल के डिसअपियर हो जाएंगे। तो चूंकि टेल रीजन में इसलिए यूरोकोडेटा, और आगे चल के गायब हो जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के चेंज को रिट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है ट्यूनिसिन, इसके कारण ट्यूनिकेटा कहेंगे। तब एक और एक्सेप्शनल मामला है, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है एनिमल फाइला, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज। हमने कहा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि फाइलम कोर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पर ये एक्सेप्शनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है। तो आप इसमें लिख लीजिए ओपन सर्कुलेशन सीन, ये आप लिख लीजिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ये एक्सेप्शनल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं उसको आप जरूर याद रखिए। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो होगा वो कौन होगा? सबसे पहले नाम आता है एसिडिया, उसके बाद है साल्पा, उसके बाद है डोलियोलम, उसके बाद है हार्डमानिया। यदि आपको कष्ट हो रहा हो याद करने में, समझने में, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि नोटोकॉड 2 लाइन याद रखिए जरूर से, और याद हो ना हो वो अलग बात है। नोटोकॉड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज इन टेल रीजन, ये पहली बात। दूसरी बात, हार्डमानिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, ये 2 याद रखिए। एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फाइलम,
एक फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक और एक एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। तो यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन इन लार्वल स्टेज, पहला पॉइंट, और दूसरा फाउंड इन हर्डमानिया, इतना जरूर याद रखिए। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इससे मिलता जुलता एक और नाम आपके सामने बताता हूँ, सीफेलोकोडेटा। फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा। तो इसमें आप यदि पेंसिल से लेकर के प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा थोड़ा आप इसमें परिवर्तन करके समझ लेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए, इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, और आपका सीफेलोकोडेटा भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे सब फाइलम सीफेलोकोडेटा, इसका स्पेलिंग होगा CEPHALO। बायोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और टर्म्स और मैकेनिज्म्स का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीफेलो, CEPHALO, सीफेलोकोडेटा। अब इसमें ये इंटीरियर पार्ट है और ये टेल पार्ट है, ये अपने डायग्राम में देख लिया है। इसमें पूरा का पूरा इस तरह से रहेगा, जीवन भर रहेगा। क्या नाम है इसका? नोटोकॉर्ड। तो ये आप लिख लीजिए, और ये भी बात ध्यान में रखें, थोड़ा टेल भी है, ये भी बनाना है, और लेंस की तरह दोनों एंड शार्प हैं। तो चूंकि दोनों एंड बहुत पॉइंटेड हैं, ये एंटीरियर एंड और इस तरह से पोस्टेरियर एंड, एंटीरियर एंड और पोस्टेरियर एंड बहुत शार्प पॉइंटेड हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं लेंसलेट्स, लेंसलेट्स भी लिखते हैं। और सीफेलोकोडेटा इसलिए कहते हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद हैं, किंतु एक एंड से दूसरे एंड तक, हेड से लेकर के टेल तक, यहाँ हेड से लेकर के टेल तक मौजूद है और जीवन भर मौजूद है, थ्रू आउट है। तो आप लिख दीजिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट PT थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर। और कहां से कहां तक? हेड से लेकर टेल तक, फ्रॉम हेड टू टेल। ये आपका पहला लाइन हो गया तैयार। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है पहला लाइन? फिर से मैं कह दूं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, कहां से कहां तक? फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक ये नोटोकॉर्ड मौजूद है। और द बॉडी इज पॉइंटेड लाइक लेंस, दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, इसलिए लेंसलेट्स। एक बात और भी याद रखने लायक है, और वो बात कि इसमें फ्लेम सेल्स वेस्कुलराइज्ड हो जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ये आगे के लिए आपको याद रखना है, जिसको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी ये चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि आपको बताया था हमने कि फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होते हैं प्लेटिनटीज में। यहाँ पर वो वेस्कुलराइज्ड हो जाएंगे, एडवांस्ड हो जाएंगे, उनका नाम भी बदलेगा। अभी उसको नहीं लिखेंगे, अभी इसमें खाली लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा नाम ब्रैकियोस्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा। इसका दूसरा भी नाम है, ब्रैकियोस्टोमा का दूसरा भी नाम है एम्फियोक्सस। ब्रैकियोस्टोमा का दूसरा नाम है एम्फियोक्सस। तो सीफेलोकोडेटा या लेंसलेट्स, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल, एंड द बॉडी इज पॉइंटेड on at both the ends from head to tail, so we can say that these are lenslets. So 2 points are to be learned. First point, cephalochordata as notochord present throughout the life from head to tail, and the body is pointed on both the ends, head and tail, so they are called lenslets. Cephalochordata means lenslets. Okay. Now we move on to the next phylum, and that is vertebrata. Next subphylum, vertebrata. In vertebrata you will find higher chordates, advanced chordates. Subphylum vertebrata includes higher or advanced chordates. Means notochord will be replaced by vertebral column in later phase of life, in adult form, you can say. So subphylum vertebrata.
Subphylum Vertebrata is now classified into two major divisions. Two major divisions. First one you can write Agnatha. A means knot, Gnatha means jaws and paired appendages. Agnatha means jaws and paired appendages are absent. Jaws matlab jabde, in which teeth remain fixed. Agnatha. Another one is Gnathostomata. Here, as you can see, this is going to be eliminated. This is going to be deleted. G is not pronounced. Gnathostomata. Here jaws and paired appendages are present. आप कह सकते हैं यहां पर जॉलेस कह दीजिए शॉर्ट में, याद करने के लिए यहां जॉड, जॉज होंगे प्रेजेंट, इसलिए जॉड. नाउ इस एग्नाथा के तहत एक ही क्लास आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में हमको पढ़ना है. और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल होता है, आप याद रखिए, पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन, ये सब. तो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा एकमात्र यहां पे आया. लेकिन नाइथोस्टोमेटा के तहत दो सुपर क्लासेस होते हैं. एक का नाम है पीसीज, दूसरे का नाम है टेट्रापोडा. पीसीज एंड टेट्रापोडा. पीसीज में आते हैं फिशेज. पीसीज PISCS, ये सुपर क्लास हुए, दो सुपर क्लास. किसके? नाइथोस्टोमेटा के. नाइथोस्टोमेटा, that is jawed animals, are further grouped into two super classes. First one is going to be Pisces, in which all true fishes, all jawed fishes, all aquatic fishes are included. Earlier we have studied jellyfish, that belongs to Nidaria. No, that is not a true fish. Devilfish, that belongs to phylum Mollusca. No, that is not true fish. Starfish belongs to Echinodermata, that is not a true fish. These are true fishes, aquatic fishes, jawed fishes, and these have gills, these have swim bladder, these have fins for movement. तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, fins act as organ of movement या organ of locomotion. But here you can see tetrapoda means all four-legged animals. All four-legged vertebrates will be included here. Tetrapoda, four-legged animals. That means the limbs are present for locomotion. 2 forelimbs and 2 hind limbs. Total number of limbs 4. So limbs are present for locomotion, and in species fins are present. That is the membranous structure in different position, in different number for locomotion. And in species you can see two classes are there to be included. First one is Chondrichthyes. Chondrichthyes means cartilaginous fishes. The body and the skeleton is made up of cartilages, and they are exclusively marine in number. They are lesser in number, only 6,000 in number. For example, better example you can write, a Scoliodon, also called dogfish. A Scoliodon is the biological name, and the common name is dogfish. Why and how? As it appears like dog? No. As it has excellent smelling power like dogs, so Scoliodon is also called dogfish. And another one is torpedo. Torpedo means what? Electric ray, commonly called electric ray. Its tail is present for movement. And you can see earlier it had muscular organ. Now in the course of evolution, the muscular organ has got modified into electric organ, which produces electrical shocks, current. So torpedo, electric ray. And another one you can write Osteichthyes. Osteichthyes means what? Bony fishes. People write bony fishes.
No, try to listen. Earlier, in early phase of life, the body endoskeleton was cartilaginous here. Later, in adult, the cartilaginous body endoskeleton has got modified into bony structure. So, earlier cartilaginous, later bony. Now, we write bony fishes are included here. And the bony fishes can be found in having a different adaptation. They may be found in marine water, they may be found in fresh water, rivers and ponds, and they may be found in brackish water. Brackish water, where the rivers meet the seas. Brackish water. Chondrichthyes and Osteichthyes. Chondrichthyes example we have studied is Scoliodon, dogfish, and another one torpedo electric ray. Now, Osteichthyes includes labio, rohu, kalbasu, catla, mangur. One bony fish is there which is known as hippocampus. Hippocampus means seahorse. The male head appears like horse. So seahorse. आप कह सकते हैं कि the head is just you can compare with the head of the horse. Its head, horse head, similar looking, and the male has a particular brood pouch in which that carries laid eggs. Eggs are already laid by the females, but carried by eggs are already produced by females and carried by males. So hippocampus means seahorse, and that is said to be, लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेल भी प्रेग्नेंट होते हैं, but that is carrying the eggs, not laying or producing the eggs, and that is a kind of parental care in fish. So hippocampus, not hippopotamus. Mind it, hippopotamus is a mammal and hippocampus is a seahorse. Some fishes are used for used as aquarium fishes. Aquarium means what? Man-made ecosystem. If you go to London, you will find in London Zoo there is the largest aquarium. Different types of fishes are there. So fishes are aquatic, they are jawed, they have a streamlined body, but the problem is that in chondrichthyes no swim bladder, no air bladder, so it may sink to the bottom and may die. So it goes on swimming all the time. But Osteichthyes, the fishes are bony and they have swim bladder. They can be like this, in this position in aquarium or in natural fresh water or marine water or brackish water. As they have swim bladder, they have no chance to sink down. So so you can find some differences between chondrichthyes and Osteichthyes. And what about tetrapoda? Now we move on to the next class, that is tetrapoda. Limbs are present here and 4 limbs are present, total 4 limbs, and the class is included. You can write amphibia. Amphi means both, and this means life, both aquatic and terrestrial life. For example, rana, frog, bufo, toad. Then reptilia. From here onward you can see the animal has become completely terrestrial. Completely terrestrial. Reptilia, crawling animals, creeping animals, lizards, snakes, tortoises, crocodiles, sphenodon. And now they have started flying. Aves. This class includes flying as well as flightless birds. Earlier flightless, now flying. Or you can say flightless birds are also there. You can find the smallest flightless bird in New Zealand, kiwi, apteryx. And the largest
flightless bird is Rhea struthio, both found in America and Africa respectively. एक अमेरिका में एक अफ्रीका में. Running bird, that is walking bird, that is not a flying bird. Okay, कहते हैं कि its common name is ostrich and its egg is huge, the largest cell, and it takes about 50 minutes to get boiled. So the largest flightless bird, ostrich, with largest egg cell, and the smallest flying bird is Melisuga, that is the hummingbird, and the largest flying bird is, आप समझ सकते हैं वो मरीन बर्ड है. तो ये सब सारे आपके सामने आएंगे नाम, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. बट द लार्जेस्ट क्लास इन दिस कनेक्शन इज आवर क्लास मैमेलिया. एंड मैमेलिया, द मैमल्स, they can be egg laying. For example, ornithorhynchus found in Australia, कहते हैं उसको duckbill platypus. And another one is Metatheria, marsupial mammals. For example, kangaroo found in Australia also. ये दोनों छोटे छोटे mammals ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. And the largest category Eutheria, जिसमें हम लोग आते हैं. सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है रैट्स का. Rats are found in largest number. लेकिन largest mammal is blue whale. That is a mammal that respires through lungs, found in marine water. Flippers they have for movement. Okay, so mammals are found in different habitats and different adaptation. So this is how we can learn the outline classification of vertebrata. First two divisions, Anatha, Gnathostomata, jawless and jawed. Then class, only one class included here, Cyclostomata. As I mentioned, these include jawless fishes, Petromyzon and Myxine. They may be ectoparasites or you can say scavengers on fishes. And here, two superclasses. Gnathostomata is further divisible into two superclasses: Pisces, all true fishes with fins, Chondrichthyes and Osteichthyes, and then Tetrapoda, lives present, amphibia, reptilia, aves, mammalia. This is how we come to an end of this class. See you in next episode. Please listen to me. Take care. Like, share, and subscribe. Good luck to you.